ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کریں کہ میئر کراچی مرتضی وہاب کی زیر صدارت سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اجلاس کا انعقاد۔ اجلاس میں ایم ڈی سالڈ ویسٹ طارق نظامانی اور اضلاع کے ڈائریکٹرز نے شرکت کی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور شہریوں کی شکایات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ افسران دفاتر سے نکل کر فیلڈ میں صفائی کے کام کی نگرانی کریں۔ مزید میئر کراچی کا کیا کہنا تھا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو پکڑ ہی لیا، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ بات یہ ہے کہ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے ایک اجلاس کی صدارت کی جس میں ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق نظامانی اور دیگر افسران موجود تھے، جہاں ان کو بتایا گیا کہ شہر میں کوڑے کرکٹ کے مسائل ہیں، اس کو آپ پرسنل دیکھیں اور یہاں آنے والی شکایتیں 1128 پر جو ہے اس کو بھی کمپلائنس کریں، کیونکہ شہر میں کوڑے کرکٹ کے انبار پڑے ہیں اور لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں میئر کراچی کو ہی کہ بھائی آپ ٹھنڈی مشین میں بیٹھے رہتے ہو۔ بہرحال سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی طرف توجہ دلائی، بڑی بات، لیکن شاہ فیصل، لاڈی، کورنگی، اورنگی، مومن آباد اور پھر دیگر علاقوں میں بھی ہم نے وزٹ کیا ہے، وہاں کوڑے کرکٹ خصوصاً نیو کراچی، ناظم آباد اور نارتھ ناظم آباد ادھر بھی کوڑے کرکٹ کے انبار ہے۔ یہ ٹاؤنز کی سطح پر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا کام ہے کہ وہ اس کو انجام دے، لیکن وہ ظاہر ہے ان کے پاس وہ کہتے ہیں نفری نہیں ہے، مشینری نہیں ہے، گھما دیتے ہیں۔ لیکن میئر کراچی پھر نکل کے طارق نظامانی کو بٹھا کے خود گڈی وچ تو گڈی وچ روانہ ہو گئے، گاڑی کو چلانا بابو ذرا ہلکے ہلکے، لیکن طارق نظامی بولوں گے گاڑی تیز چلانا میئر کراچی، لیکن میئر کراچی بھی سیاڑے تھے، انہوں نے جگہ دکھائی، دیکھو کوڑا کرکٹ پڑا ہے، گرین بیلٹ ایسی ہے اور یہ ہے، لیکن میئر کراچی بھی ادھر ہی ادھر گھوم رہا ہے، یعنی کہ صاف ستھرے علاقے میں ذرا لانڈی، کورنگی، ملیر، شاہ فیصل، نارتھ ناظم آباد، نیو کراچی اور گلبرگ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اورنگی بھی جائیے اور پھر مومن آباد جائیے، ماری پور جائیے، بلدیہ ٹاؤن جائیے، آپ کو کوڑے کرکٹ کے انبار ملیں گے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے آگے کوئی بولتا نہیں ہے، ورنہ وہ سسپینڈ ہو جائیں گے۔ میں اب پیپلز پارٹی کے چیئرمین مجبور ہیں، حالانکہ دل سے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے واسطے کام کر لو، لیکن کوئی بات نہیں۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک نے ایک اور تباہ حال گراؤنڈ کو ماڈل گراؤنڈ بنانے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ گوہر خٹک کا اسسٹنٹ کمشنر اور وائس چیئرمین طارق محمود کے ہمراہ گراؤنڈ کا دورہ۔ گوہر خٹک کا کہنا تھا کہ یہ تباہ حال گراؤنڈ میں لوگ نشہ کر کے اپنی صحت خراب کر رہے ہیں، اب اسے نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیاں فراہم کرنے کے لیے بنانے جا رہے ہیں۔ مزید چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن کا کیا کہنا تھا، جانتے ہیں عزیز عارف سے تفصیلی گفتگو میں۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک جہاں کوشش کر رہے ہیں، وہیں پر ہمارے ضلع انتظامیہ ان کے ساتھ دینے کی کوشش کرتی ہے، جس میں ہمارے ڈیپٹی کمشنر کورنگی مسعود بھٹو ہیں، وہ ہیں، ان کے اسسٹنٹ کمشنرز ہوں، چاہے وہ لانڈی کے ہو، کورنگی کے ہو، ماڈل کے ہو، کہیں کے بھی ہو، شاہ فیصل کے ہو، وہ کوشش کرتے ہیں گراؤنڈ پہ رہ کے لوگوں کو سہولیات دیں اور ان کی مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے۔ اور یقینی طور پر کیسے ہوتی ہے، میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اسسٹنٹ کمشنر کورنگی اور اس کے بعد چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک، وائس چیئرمین طارق محمود بنگش۔ پہلے تو انہی سے بات کرتا ہوں۔ آپ ڈیپٹی کمشنر ہمارے جو مسعود بھٹو ہیں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں ضلع انتظامیہ کی۔ گراؤنڈ آپ نے دیکھ لیا، پارک آپ نے دیکھ لیا، کام کی بڑی اشد ضرورت ہے، لیکن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بوجھ ہمارا غائب ہے۔ یہ دیکھنے حالت کیا ہو رہی ہے، ہمارا خطوں کی بہتات ہے، کچرا بھی ہے، اس کو کیسے نمٹیں گے کہ لوگوں کو سہولیات ملے، کیونکہ آپ کی ایفرٹس اور ڈپٹی کمشنر کی ایفرٹس بھی ضائع ہوتی دکھ رہی ہیں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، دیکھیں جگہ جگہ پہ اگر کچرا کنڈی ہوگی، مختلف گلی محلوں سے کچرا نہیں اٹھے گا تو اس سے کیا میسج جائے گا عوام کو، پلس گورنمنٹ کو، پلس میڈیا کو، کہ گورنمنٹ کام نہیں کرتی ہے۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہے، گورنمنٹ نے اپنے ریسورسز ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں پبلک میں۔ یہ ہمارے کچھ افسران یا کچھ ملازمین اس کی نااہلی میں کہوں گا کہ جگہ جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کچرا کنڈی ہے، تو انشاءاللہ میں نے اس کا نوٹس لیا ہے، میں کنسرن متعلقہ جو ادارے ہیں ہمارے سالڈ ویسٹ کے، ان کے ایڈمنسٹریشن سے بات کر کے انشاءاللہ آپ کو یہ کل انشاءاللہ یہ کلیئر کروا کے دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی میرا گوہر خٹک صاحب سے یا جو بھی ہماری ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہوتا ہے، ہماری مانیٹرنگ ہوتی ہے، جہاں جہاں ایشوز ہوتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں خود پہنچ کے اس کو ریزالو کروائیں۔ بیسیکلی یہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ گوہر خٹک صاحب ایک لیڈ رول میں کام کر رہے ہیں، پارکس بھی بنا رہے ہیں، روڈ رستے بھی بنا رہے ہیں۔ اب یہ ایک اجڑی ہوئی جگہ تھی نشیوں کی یا جو مختلف اس طرح کے جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ان کی یہ رہائش گاہ بنی ہوئی تھی، تو اس پہ انہوں نے کام کیا، اپنے ذاتی جو ٹی ایم سیز کے وسائل ہیں ان سے مٹی کی بھروائی کی، اس کو جو ہے وہ رینوویٹ
کر کے ایک گراؤنڈ کی شکل میں انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو یہ افتتاح کر کے دیں گے. تو یہ اہل محلہ کے لیے سہولت ہو جائے گی, بچوں کے لیے سہولت ہو جائے گی. برابر میں ایک پارک کھل گیا ہے اور یہاں اسپورٹس کی جگہ ہوگی. تو ہیلدی ایک معاشرہ پیدا ہوگا اگر اس طرح کی ہمارے پاس سہولتیں موجود ہوں گی. آپ ضلع انتظامیہ کے نمائندگی کر رہے ہیں ڈپٹی کمشنر کی. اگر آپ یہ کام ڈپٹی کمشنر کو آپ بتائیں گے, جا کے رپورٹ دیں گے, ان سے کہے کہ سندھ حکومت سے کوئی پروجیکٹ لے کے اس گراؤنڈ کو اگر بنا لیں تو میں گور کھٹک کی ایسی تیسی کر دوں گا. اپنے ریٹائر ملازم کچھ پیسے باقی ہیں وہ ان کو دلوا دوں گا, جو 13 کروڑ دے چکے ہیں, ابھی 1 آدھ کروڑ پھر بڑھ گئے, تو وہ پیسے وہاں آ جائیں گے. اور آپ لوگ اگر کوشش کریں گے اور گراؤنڈ اگر حکومت بنا دے یا کلک سے ذریعے بن جائے, تاکہ وہ شاہ فیصل ٹاؤن پہ کما کسی اور جگہ لگ جائے. کیونکہ بلال کالونی, گلزار کالونی کی حالت ایسی ہے کہ ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی ہے ہوتی کیا ہے. بالکل ایسے ہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں اس پہ بالکل انشاءاللہ ایک جامع ایک رپورٹ بنا کے ایک ریکمنڈیشن ڈی سی صاحب پھر کمشنر صاحب کے تھرو چیف سیکرٹری صاحب کو بھجوائیں گے. ہماری پہلے بھی گور کھٹک صاحب سے اس پہ معاملات پہ بات ہوئی ہے کہ ہم انشاءاللہ کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو شاہ فیصل کی یہ ٹاؤن ہے, یو سیز ہیں, اس میں انشاءاللہ اشد ضرورت ہے. ایک پسماندہ قسم کا علاقہ تھا, اب تو ماشاءاللہ یہ بہتر ہو رہا ہے, ترقی کی طرف گامزن ہے. تو اس میں انشاءاللہ جتنا بھی ہمارا جو سپورٹ ہے, کوارڈینیشن ہے, جو رائٹنگ ہے, وہ ہم پوری کریں گے. تو انشاءاللہ اس میں جلد آپ کو جو ہے وہ ہم خوشخبری سنائیں گے. یہ اسسٹنٹ کمشنر تھے اور یہ جو بات کر رہے ہیں یقیناً یہ آگے رپورٹ دے سکتے ہیں. ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کہ بینک سے پیسے لا کے ان کو دے دیں کہ کام کر لو. یہ ڈپٹی کمشنر کو دیں گے, وہ آگے دیں گے, ریکمنڈ کریں گے اور گورنمنٹ شاید ترس کھا لے. یار یہ تو اچھی خبر ہے نا کہ اسسٹنٹ کمشنر بھی کہہ رہے ہیں کہ بلال کالونی اور گلزار کالونی یہ علاقہ جو نظر انداز سے ڈیولپ ہو رہا ہے, اور یہ بھی کوشش کریں گے گورنمنٹ سے کچھ مل جائے. تو یقیناً آپ بھی کوشش کرنا. جی بہت شکریہ عزیز بھائی. کوشش اے سی صاحب اور ڈی صاحب بھی کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن ملتا کچھ نہیں ہے. اچھا انشاءاللہ جیسے آپ نے دیکھا, میں نے کہا کہ ہماری نیت ہے کام کرنے کے, اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہے اور ٹیکس جمع کر کے کام کر رہا ہے. یہ یہاں ہیروئن کی نشہ کرتے تھے, نشہ قبضہ بھی تھا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کھیلنے کی جگہ نہیں تھی اور سیوریج کا پانی بھرا ہوتا تھا. تو یہ ہم نے باؤنڈری وال بھی کی, ابھی لائٹنگ بھی کر رہے ہیں اور اس کو بھر بھی رہے, مٹی سے بھرائی کر رہے ہیں, اور یہ بہترین کرکٹ اور فٹ بال کا گراؤنڈ بن رہا ہے. برابر میں پارک بن گیا, برابر میں روڈ بن رہا ہے. تو اتنے پروجیکٹ اگر ٹیکس جمع کر کے ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اگر ایمانداری سے کام کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ کراچی ترقی نہ کرے اور ٹاؤن ترقی نہ کرے. حالانکہ ہم بھی ٹیکس جمع کر رہے ہیں. میری اس وقت تمام یوسیوں میں پروجیکٹ چل رہے ہیں, کہیں پر روڈ کا, کہیں پر سیوریج کا, کہیں پر پارک کا, کہیں پر گراؤنڈ کا, کہیں پر اسکول کا. تمام یوسیوں میں کوئی نہ کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے, اور انشاءاللہ شاہ فیصل ٹاؤن کو بہترین ٹاؤن بنا کے جائیں گے. اور خوشی ہمیں اس وقت ہوتی ہے کہ جب لوگ ہمیں دعائیں دیتے ہیں, لوگ خوش ہوتے ہیں جن کے لیے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ 4 سال میں ہم بدلیں گے شاہ فیصل ٹاؤن کو. حالانکہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, سندھ حکومت نے اور سید غنی صاحب نے 1.5 سال کے بعد مجھ سے انڈسٹریل ایریا کے 4 سیکٹر لے لیے, اور میں ان میں ہائی کورٹ میں بھی گیا ہوں. لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کورٹوں کا سسٹم بڑا ڈیلے ہے, اور پتہ نہیں ہم زندہ ہوں گے یا مردہ ہوں گے کہ وہ ڈیسیجن آئے گا. لیکن سندھ حکومت اور سید غنی صاحب نے ہم سے بڑی زیادتی کی, اور وہ مجھے پتہ نہیں اس کو 1.5 سال کے بعد کیسے یاد آیا کہ شاہ فیصل پر بڑی زیادتی کی. اچھا پھر میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں فنڈ نہیں تھے, میں کبھی بھی ان سے نہیں کہا کہ آپ ہمیں پیسہ دیں. آپ خود آئے, گراؤنڈ بنائے, پارک بنائے, روڈ بنائے, ہم اپریشیٹ کریں گے, آپ کو ہار پہنائیں گے. چاہے وہ میئر صاحب آتے ہیں, چاہے وہ سید غنی صاحب آتے ہیں, چاہے وہ سندھ حکومت کوئی پروجیکٹ کرتی ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے کسی کام ہونا چاہیے. لیکن شاہ فیصل کا نام سنتے ہی لوگوں کو بخار آ جاتا ہے. پتہ نہیں, ہمیں تو نہیں چڑھتا. بہرحال اسسٹنٹ کمشنر نے گارنٹی دی ہے اور یقینی طور پر دیں گے. بھائی مطمئن ہو, اسسٹنٹ کمشنر بھی خوش جا رہا ہے بھائی. جی بالکل, ایسی صاحب کی کوارڈینیشن ہمارے ساتھ بہت اچھی ہے. اپنی طرف سے یہ رپورٹ بنا کر بھیجیں گے. باقی آپ کو پتہ ہے اوپر سے جیسے چیئرمین صاحب نے بتایا کہ 2 سال بعد ہم سے 4 سیکٹر لے لیے گئے. تو آگے اللہ کرے کام کی امید ہے, ہم پازیٹیو مائنڈ رکھتے ہیں, باقی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. یہ تھے وائس چیئرمین طارق محمود بنگش اور اسسٹنٹ کمشنر, ان کی بھی سنوا دی. گراؤنڈ بلال کالونی کا اگر بن جاتا ہے تو ہمارے نوجوان کھیل کود کی سرگرمیوں میں مصروف ہو جائیں گے. ایک اچھی خبر ہے کہ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گور کھٹک جس کا تحریک انصاف سے تعلق ہے, تھوڑا سا احساس کمتری کا شکار ہے. یار وہ 4 آپ لے گئے وہ انڈسٹریل ایریا, اگر دے دیتے تو کتنے اور کام کرتا. اگر لاکھوں روپے وہاں سے آتے تو وہ عوام کی طرف ہی لوٹاتا. آداب عرض. میونسپل کمشنر لیاری حماد اینڈی خان نے فدا حسین شیخا روڈ سیفٹی لائن پہنچ کر سیوریج مسائل کا جائزہ لیا اور فوری کارروائی کرتے ہوئے لائن کلیئر کروائی. صوبائی مشیر عثمان ہنگورو, یو سی چیئرمین محب رئیس, قادر لوہار اور دیگر افسران ان کے ہمراہ موجود تھے.
लियारी टाउन में अचानक फिदा हुसैन शेख रोड पर एक सेफ्टी लाइन फट गई और उसका जैसे ही पता चला कि सीवरेज के मसाइल पैदा हो रहे हैं तो म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हम्माद एंडी खान फौरी तौर पर वहां पहुंच जाते हैं और लाइन का मुआयना करते हैं और फौरी तौर पर अपने अमले को, स्टाफ को बुलाते हैं, सैनिटेशन डिपार्टमेंट को, और कामों की अंजाम दही शुरू कर देते हैं कि कामों को फौरी तौर पर अंजाम दिया जाए। और इस मौके पर सूबाई मुशीर उस्मान हंगोरा, यूसी के चेयरमैन मुहिब रईस, कादिर लोहार और दीगर अफसरान भी मौके पर मौजूद थे। तमाम रात गए तक उन्होंने तमाम तर कामों को मुकम्मल किया और सीवरेज लाइन को क्लियर किया। हमाद अली खान जो म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी टाउन है, उनका कहना था कि जैसे ही हमें इतला मिली हम फौरी तौर पर पहुंच गए और यकीनी तौर पर कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया था ताकि अहलियान लियारी टाउन को, खुसूसन जो फिदा हुसैन शेख रोड है, इसके लोगों को या कारोबारी लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। नतीजा ये हुआ कि अफसरान ने और सैनिटेशन डिपार्टमेंट ने और कुंडी मैनों ने बर वक्त कार्रवाई की, लेकिन उसके साथ साथ फिर सैनिटेशन डिपार्टमेंट को कहा कि इसको क्लियर किया जाए रोड को, ताकि लोगों को आने जाने में भी आसानी रहे। उन्होंने कहा कि सीवरेज सिस्टम पर हमारी कड़ी नज़र है और यकीनी तौर पर हम उस पर भरपूर कार्रवाई भी करते चले आ रहे हैं। जैसी इतला मिलती है हमारा अमला और अफसरान मौके पर मौजूद होते हैं ताकि लोगों को सहूलियात की फराहमी को हर हाल में यकीनी बनाया जाए और यकीनी तौर पर इसमें हमें कामयाबी हासिल हो रही है क्योंकि इलाका मकीन भी लियारी टाउन से ताउन कर रहे हैं। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। चेयरमैन मंगोपीर टाउन नवाज अली बरोही अवाम के मसाइल के हल के लिए शब रोज़ मसरूफ़ हैं। चेयरमैन नवाज अली बरोही रात भर साइमा अरेबियन में सीवरेज के काम की निगरानी करते रहे, जबकि चेयरमैन नवाज अली बरोही का कहना था कि हम आवाम के मसाइल के हल के लिए कोशा हैं। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही अवामी खिदमत के कामों में दिन और रात मसरूफ रहते हैं और बड़ा मिसहैप हुआ था जो साइमा के साथ ड्रेनेज सिस्टम बैठ गया था और एक तवील सीवरेज का सिस्टम जहाँ बैठा था उससे यकीनन बारिश में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तमाम उन्होंने फौरी तौर पर रब्ता किया था मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से, जिसके बाद वहाँ से भी मदद आई थी और कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन भी इनके साथ ताउन कर रहा है। यही वजह है कि हाजी नवाज बरोही दिन हो या रात कोशिश कर रहे हैं कि इस लाइन को फौरी तौर पर मुंतकिल भी किया जाए और इसको मुकम्मल भी किया जाए। रात दिन एक्सीवेटर से खुदाई का काम जारी है, वहाँ लाइनें को डालने का काम भी जारी है, जिसका मुआयना हाजी नवाज बरोही, चेयरमैन मंगोपीर टाउन, वाइस चेयरमैन आरिफ राना और दीगर उनके अफसरान भी कर रहे हैं और उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह लोगों को जल्द से जल्द बल्दियाती सहूलतें फराहम की जा सकें और यकीनी तौर पर उसमें वो कामयाबी से हमकिनार भी हो रहे हैं। इस बड़े सीवरेज लाइन जो काफ़ी तवील थी, इसका बैठने मंगोपीर टाउन के लिए मसाइल पैदा कर रहा था, लेकिन यहाँ दिन रात काम करने के बाद अब उसको बड़ी लाइन से मिला दिया गया है, मुंतकिल भी कर दिया गया है ताकि मज़ीद आने वाली बारिशों में या कोई मसला होता है तो सीवरेज सिस्टम बैठेगा नहीं और इससे इलाके के लोगों को भी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। तमाम इस मौके पर चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने क्या कहा, सुनवाते हैं इन्हीं की ज़बानी। सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया, राणा साहब का शुक्रिया, पूरी मेरी टीम का शुक्रिया। इस वक्त सुबह के तकरीबन 5:45 बज रहे हैं। कल शाम से हम यहाँ साइमा अरबियन विलास के सामने एक देरीना मसला था सीवरेज का, जिसको डाइवर्जन दी हम लोगों ने। इसमें खासतौर पर हमारे सैनिटेशन के डायरेक्टर लियाकत साहब भी हमारे साथ मौजूद है, वाइस चेयरमैन राणा साहब और पूरी टीम। तो हम कोशिश करेंगे कि आवाम को जो है ना रिलीफ दें और उनके मसाइल हल करें। जो पानी रोड पे चल रहा था जिससे ख़ास तौर पर नमाजी, बुजुर्ग, ख़वातीन और बच्चे परेशान थे, उसका हल हमने निकाला है। इसको हमने डाइवर्जन दिए। इंशाल्लाह बाकी जो काम है वो कोशिश रहेगी हमारी 15 से 20 दिन में हम इसको मुकम्मल करेंगे ताकि जो है आने जाने के बाद लोगों को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो और सीवरेज के मसाइल हल हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही की जो कोशिश है कि वो अपने लोगों को, चाहे वो गोठों के हो या शहरी इलाकों को हो, बराबरी की बुनियाद पर भला रंग व नस्ल और किसी लसानियत कौमियत के हट कर सिर्फ और सिर्फ उनको बल्दियाती सहूलतें फराहम की जाए। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही वाज़े तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन की तकमील करते हुए दिखाई देते हैं। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। म्यूनसिपल कमिश्नर नाज़माबाद टाउन ने चेयरमैन नाज़माबाद टाउन की 2 साला कारकर्दगी पर इल्जामात से भरा खत म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची को लिख दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। नाज़माबाद टाउन के म्यूनसिपल कमिश्नर भी अब हाथ
पैर झाड़कर सीधे चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर और उनकी कौंसिल के पीछे हाथ धो के पड़ गए और उन्होंने एक काम किया और 15 सितंबर 2025 को एक लेटर 111 ए 2025 यानी 111 ए 2025 लिखा और वो लिखा है उन्होंने ग्रेड 21 के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिंध कराची को। उसके अंदर उन्होंने तमाम चूरन चटनी के साथ खत लिख दिया है और उसमें बाकायदा हवाला जात दिए गए हैं और उनका कहना है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। खत में उन्होंने लिखा है कि टाउन चेयरमैन और कौंसल टीएमसी नाजाबाद की गैर ईमानदारी, काबिल एतमाद इंतजामात, कोऑर्डिनेशन और अदम ताउन की रिपोर्ट हम दर्ज आपको दे रहे हैं। उन्होंने सैयद मोहम्मद मुजफ्फर जो चेयरमैन नाजाबाद टाउन है उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई का भी मुतालबा कर दिया है और तवज्जो दिलाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि मेरी शमूलियत के चंद दिन बाद एक कलर उस्मान गनी जो कि कौंसिल के तमाम मामला निपटाने वाला चेयरमैन का आदमी है, गैर कानूनी नामजद फोकल पर्सन BNR के SUG सर्विस को नज़रअंदाज करके कुछ हंगामी बिल्स बनाते हैं। फ्यूल के दीगर के पास कोई इस्तेकाक जवाब बजट की फराहमी वगैरह नहीं है, लेकिन मैंने देखा है इसमें तमाम बिलों की मुकम्मल नहीं करते और तमाम बिल्स मुकम्मल करने के लिए जब कहा तो मुश्किलात हुई। हालांकि टाउन चेयरमैन ने तमाम स्टाफ को हिदायत की है कि वो मेरे साथ ताउन और हम आंगी ना करें, जिसकी वजह से कौंसिल के काम में खलल पड़ता है और मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी को जांचे बगैर बेहतरी लाने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों से कौंसिल के तमाम काम करारदाद की बुनियाद पर हुकूमत की मंजूरी के बगैर सिर्फ इनके ज़ाती मर्जी और चेयरमैन की ख्वाहिश पर चल रहे हैं कि वो कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी ज़ाती लोगों को जगह दें। टाउन चेयरमैन अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कौंसिल को अपनी कंपनी के तौर पर चलाकर लोगों के अपने आप के हक में नहीं जा रहे, बल्कि इसलिए वो दयानतदार, सच्चे और काबिल एतमाद नहीं रहे। माशाल्लाह भाई। मुंदरजा वाला मौक़िफ़ के पेश नज़र दरख्वास्त की जाती है कि टाउन चेयरमैन और इनकी कौंसिल को सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के सेक्शन फला 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 चूरन चटनी के तहत मुतल्लिक़ा क़वाइद तहत गुज़िश्ता 2 साल की गैर जानिबदारी इंक्वायरी करके हुकूमत और इंसाफ के मफाद में नाअहल करार दिया जाए। शाबाश है भाई। उन्होंने इसके लिए या आर्जी यानी जो कमिश्नर सिंध है इलेक्शन कमीशन उनको स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, DG प्रोफेशनल लोकल गवर्नमेंट, कमिश्नर कराची, वजीर बल्दियात सिंध, डिप्टी कमिश्नर वस्ती को भी इसकी कापी अरसाल कर दी है। माशाल्लाह इन्होंने ये काम कर दिया। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन नाज़ाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने भी एक करारदाद पास कर ली है उनकी कौंसिल ने, और ये कानूनी तौर पर कौंसिल ने करारदाद पास कर ली है और इनसे जान छुड़ाने के लिए बाकायदा अब करारदाद मंजूर हो चुकी है जो लोकल गवर्नमेंट को भेज दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि अगर चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर नाज़ाबाद टाउन ने अपनी ज़बान खोल दी, जी हाँ, अगर उन जो हमारे सराय बता रहे हैं, अगर उन्होंने अपनी ज़बान खोल दी, जिनको ये कह रहे हैं कि ईमानदार और दयानतदार नहीं रहे, तो अगर उन्होंने ज़बान खोल दी तो यकीनी तौर पर म्युनिसिपल कमिश्नर जो कि रोशन अली लोलाई हैं, जिन्होंने ये ख़त लिखा है, म्युनिसिपल कमिश्नर भी हैं अभी मौजूदा दौर में, लेकिन इनको कौंसिल ने फारिग कर दिया है, उन्होंने अगर ज़बान खोल दी तो ये मुश्किल में आ जाएंगे। ये हम बिल्कुल दावे से कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक कंक्रीट खबर है। उसकी वजह यह है कि म्युनिसिपल कमिश्नर रोशन अली लोलाई जो कि बकाले पहली पोस्टिंग है सिंध के बाद यहाँ आए, कराची आए हैं, लेकिन सूजी सर्विस वाले अफसरान के लिए अब ये परेशान कुन मरहला शुरू हो जाएगा, इसलिए कि कराची में साबिक म्युनिसिपल कमिश्नर लांडी टाउन का जिस तरह काम हुआ है और जिस तरह वो अभी तो पूरी तरह मंजर आम पे नहीं आया क्योंकि लांडी टाउन के चेयरमैन ने भी अपनी ज़बान पूरी नहीं खोली है, लेकिन ना उनके अफसरान ने, लेकिन यहाँ के अगर चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर जो कि ईमानदार और दयानतदार बकौल इनके नहीं रहे और 2 साल का ये काम कर रहे हैं, इनको आए हुए 2 महीने हुए हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर ये अगर ज़बान खोल दी चेयरमैन ने और इनके अफसरान ने तो यकीनी तौर पर ये दूसरे सूजी सर्विस से ताल्लुक़ रखने वाले अफसर होंगे जिनकी कराची में जो पोजीशन है। लेकिन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ग्रेड 21 यकीनी तौर पर एक समझदार शख्सियत है, वो इन चीज़ों को इतनी ज़्यादा लिफ्ट नहीं मारते, उनको सब चीज़ें पता है कि सूजी सर्विस वाले क्या करते हैं टाउनों में। इसके साथ साथ वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी गुड गवर्नेंस के लिए काम करते हैं और यही वजह है कि लांडी टाउन से जो पंडोरा बक्स खुलना था उसको सईद गनी ने दबा दिया ताकि वो पंडोरा बक्स ना खुले, उससे सूजी सर्विस वालों का
बड़ा सख्त एहतसाब हो सकता था, लेकिन बहरहाल सईद गनी गुड गवर्नेंस लाते हुए पंडोरा बस को ना खोलते हुए लांडी टाउन के म्यूनसिपल कमिश्नर का तबादला कर चुके थे। यकीनी तौर पर इस रोशन अली लोलाई हैं, इनकी तरफ से अगर ये ख़त किया है तो यकीनन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एक समझदार शख्सियत है, वो सब कुछ जानते हैं, और अगर सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने सच बोल दिया उनके अफसरान ने, तो यकीनी तौर पर ये दूसरे म्यूनसिपल कमिश्नर होंगे जो कराची में जो कि काम करना तो इनके लिए मुश्किल होगा, वहीं पर दूसरे सूजी अफसरान के लिए भी ये मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक। खबर शामिल करें कि जहांगीर रोड की सड़क फिर खंडर का मंजर पेश करने लगी। यहां नालों के जरिए पानी की निकासी होती थी, नाले की जगह सीवरेज पाइप डाले गए, जबकि मसला हल ना हो सका। शहरियों का कहना है कि सीवरेज लाइनों से बेहतर नालों के जरिए पानी की निकासी हो जाती थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस इलाके और सड़क का नाम तो जहांगीर बादशाह से है मंसूब, लेकिन हुकूमत कोई नहीं हो सके इस नाम से आज तक मरऊब। यहाँ से गुजरो तो ये किसी गांव की सड़क का मंजर पेश करती नजर आती है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे ट्रैफिक जाम का बाइस बनते हैं। जहांगीर रोड की किस्मत खराब है या यहाँ रहने और गुजरने वालों की? यहाँ नाले बंद करके सीवरेज लाइनों की तब्दीली पर सालों लगे, हल क्या निकला? इन शहरियों से सुनिए कि पहले नाले ही अच्छे थे। वो नाले खत्म किए इन्होंने और पाइप डाल दिए, तो पाइप डालने से ये हुआ कि बारिश का जो पानी था अब वो रोड पे रुकना शुरू हो गया। जब वो पानी रोड पे रुकेगा तो लामाला रोड टूटेंगे। कर ये है कि ये जब भी बना है ये सही तरीके से बना ही नहीं है, ये सिर्फ करप्शन है और कुछ भी नहीं है। ये बारिश की वजह से टूटा है, ये नीचे मिट्टी डाल देते हैं, ऊपर रोड डाल देते हैं। बारिश आती है, नीचे से मिट्टी गिली होती है, ऊपर से रोड टूट जाता है। अगर कोई हुकूमत के खिलाफ बोले तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। ऑनलाइन बाइक चलाने वाले का कहना था, जितना कमाता हूँ आधा इन टूटी सड़कों की वजह से बाइक की खराबी पर लगा देता हूँ। बेरोजगारी ने मजबूरी बना दिया। गाड़ी पे इतनी मरम्मत लग जाती है, हमारी गाड़ी में बाइकें चला रहे हैं हम लोग 2 साल से बेरोजगार थे। जब हमारा जरिया बना बाइकिया का, छोल अच्छा जरिया था तो हमने ये इस्तेमाल करा बाइकिया का जरिया, लेकिन इससे अभी हमारे को बहुत परेशानी हो गई है। मतलब हमारे जो कमाते नहीं है उतना हमारा महीने का इस पे खर्चा लग जाता है। ये सड़क बसों से खड़र बनने के साथ खाक उड़ाती रही है। सड़क की तामीर की जिम्मेदारी केएमसी को और केएमसी वफाक को करार देती रही। मेयर कराची ने आवाम की परेशानी को देखते हुए तामीर कराई और इसकी तामीर को मेयारी करार दिया, लेकिन इसके मेयार की पोल चंद माह में ही खुल गई थी और अब शायद जहांगीर रोड की तामीर के लिए किसी जहांगीर बादशाह का इंतजार है। कैमरामैन फैसल शब्बीर के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर बल्दिया उज़्मा कराची और चेयरमैन UC6 मोमिनाबाद टाउन सलाहुद्दीन यूसुफजई की खुसूसी काविशों से तरक्याती मंसूबों के दूसरे फेज का आगाज। सलाहुद्दीन यूसुफजई का कहना है कि मोमिनाबाद टाउन की UC6 को मॉडल UC बनाया जाएगा। आवाम से किए गए वादे पूरे हो रहे हैं। मोमिनाबाद टाउन की UC6 को मॉडल UC बनाया जाएगा और अवाम से किए गए वादे पूरे हो रहे हैं। ये बात सलाहुद्दीन यूसुफजई ने की। डिप्टी पार्लिमानी लीडर बल्दिया उज़्मा कराची और चेयरमैन UC6 मोमिनाबाद टाउन सलाहुद्दीन यूसुफजई ने की खुसूसी काविशों से जहाँ तरक्याती मंसूबों के दूसरे फेज का भी आगाज कर दिया गया है। इस मरहले में जमात इस्लामी के साबिक़ रुकन सिंध असम्बली हमीदुल्लाह एडवोकेट के घर के अतराफ गलियों में पेवर ब्लॉक्स की तनसीब शुरू हो चुकी है, जबकि दूसरे मरहले में फ्रंटियर मोड़ गोश्त वाली गली और उसके अतराफ को भी मॉडल गलियों के तर्ज पर मुकम्मल किया जाएगा। डिप्टी पार्लिमानी लीडर बल्दिया उज़्मा कराची और UC6 के चेयरमैन सलाहुद्दीन यूसुफजई ने मजीद कहा कि हम मोमिनाबाद की UC6 को मॉडल UC बनाएंगे, आवाम से किए गए एक एक वादे को पूरे करेंगे। तरक्याती मनसूबे का यह सिलसिला अवामी एतमाद और ताउन की बदौलत जारी है और बहुत जल्द मजीद खुशखबरियाँ भी मिलेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि UC की आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करना और मसाइल के हल के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। इलाके की तामीर और तरक्की और अवामी खिदमत का ये सफ़र बिला तातुल जारी रहेगा। इस मौके पर इनके हमरा वाइस चेयरमैन सैयद मुख्तार शाह, जनरल काउंसलर वाजिद खान, जनरल काउंसलर साजिद खान, मारूफ सराफी बाबू, जाबाज के एडिटर जैदी और फोकल पर्सन आबिद सवाती, कोऑर्डिनेटर इमरान मानी और टीम के दीगर अरकान भी मौजूद थे। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। सदर टाउन की जानिब से सिविल अस्पताल में शहरियों की सहूलत के लिए ठंडे पानी के कूलर
बेंचेस और शेड का इफ्तिताह। यूएस चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख और म्यूनिसिपल कमिश्नर सदर टाउन नूर हसन जोखियों ने इफ्तिताह किया। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने कहा कि सिविल अस्पताल शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। यहाँ रोजाना हजारों मरीज आते हैं। सदर टाउन की जानिब से सिविल अस्पताल में शहरियों को सहूलत के लिए ठंडे पानी के कूलर, बेंचेस और शेड का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख और म्यूनिसिपल कमिश्नर सदर टाउन नूर हसन जोखियों ने सिविल हॉस्पिटल कराची में मरीजों और इनके तीमारदारों के लिए नस्ब किए गए ठंडे पानी के कूलर, आरामदेह बेंचेस और शेड का इफ्तिताह किया। ये मंसूबा सदर टाउन की जानिब से अवामी खिदमत के जज्बे के तहत मुकम्मल किया गया है ताकि अस्पताल आने वाले हजारों मरीजों और शहरियों को गर्मी में मुश्किलात के दौरान सहूलत महसूस कर सकेंगे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने कहा कि सिविल अस्पताल शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहाँ रोजाना हजारों मरीज आते हैं और उनके साथ दीगर यानी उनके साथ जो लोग आते हैं, इसलिए यहाँ सहूलत की फराहमी नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि सदर टाउन अवामी खिदमत के जज्बे के तहत अमली इक़दाम करता चला आ रहा है और मरीजों के साथ साथ इनके अहले खाना के लिए भी आरामदेह माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर सदर टाउन नूर हसन जोखियों ने कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद सदर टाउन शहरियों की बुनियादी ज़रूरियात के लिए अमली इक़दाम कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम दोस्त इक़दाम का ये सिलसिला मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा और अस्पताल और अवामी मकामात पर मज़ीद सहूलतें फराहम की जाएंगी। इस मौके पर वाइस चेयरमैन UC6 वसीम अहमद शिराजी, डायरेक्टर पार्क्स सदर टाउन आसिम अली खान, डिप्टी डायरेक्टर पार्क्स फरहान अली और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर M&E मुमताज़ अली जरदारी भी मौजूद थे। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने इस इक़दाम को अवामी खिदमत की एक नुमाया मिसाल भी करार दे दिया और कहा कि सिविल अस्पताल आने वाले मरीजों और इनके लवाकिन से यानी कि अहले खाना से बराह रास्त मुस्तफ़ीद भी होंगे। चेयरमैन सदर टाउन ने आखिर में इस अज़म का इजहार किया कि अवामी खिदमत के मज़ीद मनसूबे भी बहुत जल्द शुरू किए जाएंगे ताकि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत फराहम की जा सके। अजीज़ आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कायम मकाम चेयरमैन कोरंगी टाउन जरी आवान ने कोरंगी 2.5 नंबर टोटल पेट्रोल पंप इंतजामिया की जानिब से में 12,000 रोड नाले को RCC छत डालकर बंद करने की इत्तला पर टाउन इंक्रोचमेंट डायरेक्टर कैसर अजीज के साथ खुद मौके पर पहुंचकर तामीराती काम बंद करवाकर सामान जब्त कर लिया। कायम मकाम चेयरमैन ने कहा कि हम किसी सूरत बरसाती नाले पर किसी भी किस्म के तजावुजात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कायम मकाम चेयरमैन कोरंगी टाउन जरी एवान ने कोरंगी 2.5 नंबर टोटल पेट्रोल पंप इंतजामिया की जानिब से मेन 12,000 रोड नाले को RCC छत डालकर बंद करने की इतला पर सख्ती से नोटिस लिया और टाउन इंक्रोचमेंट डायरेक्टर कैसर अजीज के साथ खुद मौके पर पहुंच जाते हैं। तामीराती काम बंद करवा कर सामान जब्त कर लिया गया। कायम मकाम चेयरमैन जरी ऐवान ने कहा कि कोरंगी टाउन में जहां ब्यूटिफिकेशन का काम जारी है, लोगों को बल्दियाती सहूलतें फराहम की जा रही हैं, वहीं बिला इजाज़त अगर रोड कटिंग या बरसाती नाले को या साइबर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हम किसी सूरत बरसाती नाले पर किसी भी किस्म की तजावुजात को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मौके पर वाइस चेयरमैन UC8 उमर फारूक और UC11 के वाइस चेयरमैन मौलाना अब्दुल गफूर अमजदी और वाइस चेयरमैन के फोकल पर्सन सीनियर सियासी रहनुमा राजा मोहम्मद आसिफ और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर जहां उन्होंने काम को रुकवा दिया, वहीं फिल्म फॉर महकमे को पाबंद किया है कि उस पर कड़ी नजर रखें। उन्होंने कहा कि किसी तौर पर भी तजावुजात तो हमारा खात्मा करना और हमारा अमली काम भी है और डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन नाले के ऊपर किसी किस्म की तजावुजात को हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और कोरंगी टाउन की खूबसूरती को भी और जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़े वो उसके हम हर लिहाज पर हर महल्ले पर कार्रवाई का अमल जारी रखेंगे। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कायम मकाम चेयरमैन कोरंगी टाउन जरी आवान कोरंगी में मसीही बिरादरी की मजहबी तकरीब के लिए सफाई के कामों का जायजा लेने पहुंची, जबकि टाउन की जानिब से ज़ियारत मुक़द्दसा तकरीब के मकाम पर प्योर ब्लॉक, लाइट्स और दीगर बल्दियाती सहूलियात फराहम की गईं। कायम मकाम चेयरमैन कोरंगी टाउन जरी आवान ने कोरंगी 2.5 कोस्ट गार्ड चौरंगी का दौरा किया और वहां पर सफाई सुथराई और दीगर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। मसीही बिरादरी की इस 3 रोज़ा तकरीब ज़ियारत मुक़द्दसा माह मरियम के नाम से अदा की जाती है, जिसमें
जिसमें पूरे कराची से मसीही बिरादरी के लोग शरीक होते हैं। जियारत की जगह पर पहले कचरा, मलबा और दीगर गंदगी के ढेर मौजूद थे, जिसकी वजह से जियारत की तकरीब में परेशानी होती थी। टाउन इंतजामिया ने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए जियारत की जगह पर प्योर ब्लॉक, लाइट्स और दीगर बल्दियाती सहूलियात फराहम की, जिस पर मसीही बिरादरी इंतजामिया ने डेप्यूटी स्पीकर सिंध नवीद अंथोनी, जिले सदर पीपल्स पार्टी जानी मेमन, टाउन चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख, मेंबर सूबाई असेंबली फारूक आवान, वाइस चेयरमैन कोरंगी जरी आवान, अक़लियती काउंसलर इम्तियाज शीमा और मसीही बिरादरी की तंजीम सबको खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि मसीही बिरादरी की ज़ियारत मुक़द्दसा माह मरियम की तकरीब बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के बाद खुशगवार माहौल में मनाई जाएगी। गुलबर्ग टाउन इंतजामिया और रोटरी क्लब के इश्तिराक से पेरी प्राइमरी तलबा में कॉपियाँ तकसीम की गईं, जबकि चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह का कहना था कि तालीम ही कौमों की तरक्की का जरिया है। हमारी अव्वलीन तरजीह यही है कि इलाके के हर बच्चे को मेयारी तालीम और बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। आपको बताएं कि गुलबर्ग टाउन इंतजामिया और रोटरी क्लब के बाहमी ताउन से प्री प्राइमरी के सैकड़ों बच्चों में कॉपियाँ तकसीम की गईं, जिस हवाले से एक पुरवकार तकरीब बहादुर यार जंग स्कूल में मुनक्किद हुई, जिसमें चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह, म्यूनिसिपल कमिश्नर अब्दुल हमीद सुहाग, UC8 के चेयरमैन फारूक नेमतुल्लाह, डायरेक्टर एजुकेशन नदीम हनीफ, डेप्यूटी डायरेक्टर एजुकेशन आयशा कमर, डेप्यूटी डायरेक्टर एजुकेशन जफर कुरैशी और रोटरी क्लब की जानिब से डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर शहजाद शब्बीर, सदर नाइला मसूद, तनवीर कादरी समेत तमाम स्कूलों की प्रिंसिपल्स और अमला बड़ी तादाद में शरीक हुआ। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तालीम ही कौमों की तरक्की का जीना है। हमारी अव्वलीन तरजीह यही है कि इलाके के हर बच्चे को मेयारी तालीम और बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। गुलबर्ग टाउन इंतजामिया तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाएगी ताकि हमारे बच्चे एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सकें। उन्होंने रोटरी क्लब के ताउन को सराहते हुए कहा कि समाजी तंजीमों और तालीमी इदारों के बाहमी इश्तिराक से ही बच्चों को बेहतर तालीमी माहौल में असर किया जा सकता है। इस मौके पर रोटरी क्लब के नुमाइंदगान ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वो आइंदा भी गुलबर्ग टाउन के साथ मिलकर तालीम के फरोग और फलाही मंसूबों पर काम जारी रखेंगे। कॉपियों की तकसीम के दौरान बच्चों की चेहरों पर खुशी और मुसरत नुमाया थी, जबकि प्रिंसिपल्स और असातिज़ा ने भी इस इक़दाम को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि इस तरह की सरगर्मियां बच्चों को तालीम के सफ़र में मज़ीद हौसला फराहम करेंगी। गुलबर्ग टाउन का तालीम के फ़रोग के लिए सरगर्म अमल है, जबकि चेयरमैन नुसरतुल्लाह के हमरा गुलबर्ग टाउन के अबू तराब स्कूल और मंसूरा लाइब्रेरी का दौरा किया गया। चेयरमैन नुसरतुल्लाह ने कहा कि तालीम ही कौमों की तरक्की की बुनियाद है और गुलबर्ग टाउन में जारी रिफॉर्म्स का मकसद हर बच्चे को मेयारी तालीम फराहम करना है। तालीम की तरक्की और रिफॉर्म्स के टाउन गुलबर्ग इंतजामिया के आज़म हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट के कंट्री डायरेक्टर सलीम मंसूरी और प्रोग्राम डायरेक्टर अमजद ने टाउन चेयरमैन नुसरतुल्लाह के हमराह गुलबर्ग टाउन के अबू तराब स्कूल और मंसूरा लाइब्रेरी का दौरा किया। इस मौके पर टाउन चेयरमैन नुसरतुल्लाह ने कहा कि तालीम ही कौमों की तरक्की की बुनियाद है और गुलबर्ग टाउन में जारी रिफॉर्म्स का मकसद हर बच्चे को मेयारी तालीम फराहम करना है। उन्होंने ऐलान किया कि गुलबर्ग टाउन के तमाम स्कूल्स को मॉडल स्कूलों में तब्दील किया जाएगा ताकि ये इदारे नौजवान नस्ल को बेहतर मुस्तकबिल फराहम कर सकें। HHRD के कंट्री डायरेक्टर सलीम मंसूरी ने कहा कि इदारा दुनिया के 56 से जायद ममालिक में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद गुलबर्ग टाउन की कारकर्दगी नुमाया और काबिल सताइश है और तालीम के फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। तकरीब में साबिक टाउन नाजिम फारूक नेमतुल्लाह और डायरेक्टर एजुकेशन नदीम हनीफ, कराची के रीजनल मैनेजर अदील और दीगर मौजूद शख्सियात ने भी शिरकत की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल अब्बासी हस्पताल के अतराफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन फुटपाथ पर रखा सामान जब्त करके कानूनी कार्रवाई की गई। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बल्दिया उस्मा कराची अम्मार खान के ज़ेर निगरानी अब्बासी शहीद हस्पताल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई। अब्बासी शहीद हस्पताल के अतराफ से गैर कानूनी तजावुज़ात से ठेले पथारे तहवील में लेकर KMC स्टोर में जमा करवा दिया गया, जबकि कार्रवाई डायरेक्टर साइम इमरान डेप्यूटी डायरेक्टर ने स्टाफ के हमराह की। इस मौके पर इलाका पुलिस भी मौजूद थी।
लियाकत आबाद अंडर पास के साथ गरीबाबाद जाने वाली सड़क सीवरेज के पानी से कई रोज से ज़ेरे-आब। सफर करने वाले मुश्किलात का शिकार, जबकि मोटरसाइकिल सवारों का गिरना मामूल बन गया। सीवरेज के पानी से बना तालाब गुजरने वालों के लिए बना है अजाब। यह मुतसिल अंडरपास लियाकताबाद सड़क हो गई बर्बाद। सड़क पर पड़े गड़े, मोटरसाइकिल सवार अब गिरे। रिक्शे, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों का गड़ों में फंसना है मामूल। कई रोज हो गए, इंतजामिया हल ना निकाल सकी कोई माकूल। शहरी कहते हैं बस जान जोखों पर रखकर सड़क पार की है। अल्लाह माफ करे, मौत बेहतर है। यहाँ पर रहने से ज्यादा अच्छा मौत बेहतर है। इंसान मर जाए, कराची में ना रहे। जो हाल है हर दफा का एक दफा का थोड़ी है, हर दफा परेशानी होती है, बारिश हो या ना हो, ये तो रोज का ही है। घंटों के अलावा यहाँ पे जिंदगी अजाब बन चुकी है। अभी देखिए आपके सामने मेरी फैमिली वहाँ से आ रही है, अब वो कोने पे से पैदल आ रही है, कितना अजाब हो रहा है। अगर यहाँ पे बंदा कोई गिर जाए तो कोई बचाने भी नहीं आएगा हम लोगों को यहाँ पर। मन चले नौजवान भी खूब बोले। इस रोड पे इतना मजा आया है। ये सी व्यू जाता है इतवार वाले दिन घोड़े की सवारी करने, इसको मैंने सवारी करा दी आज गाड़ी में घोड़े की। ये सी व्यू जो है ना हमसे मिलने के लिए आया हुआ है आज यहाँ पर ना, आज सी व्यू आया हुआ है हमसे मिलने के लिए, तो फुल एंजॉय चल रहा है कराची में। बाइक पर सवार खवातीन मोटरसाइकिल पर गिरने के खतरे के बायस पैदल चलने पर थी मजबूर। यहाँ हर साल बारिशों के बाद कई रोज सीवरेज का पानी जमा रहता है। सीवरेज लाइन अभी तब्दील हुई पर मसला हल ना हो सका। कैमरामैन फैसल शब्बीर के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।